Okay, so we are going ahead with the lesson cell structure and organization. And previous session mein we had completed discussion about endoplasmic reticulum followed by Golgi apparatus, right? So we had started discussing about the different types of cell organelles found in eukaryotic cell. So we are seeing them in detail. Prokaryotic के बाद eukaryotic का full detail में हम देख रहे हैं, है ना? So the next thing that we have to go ahead after Golgi apparatus. Now you remember properly कि हम लोग बात कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, है ना? That means the plasma membrane, it forms a continuation with some of the organelles within the cell. So जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने देखा था कि the continuation of the plasma membrane to the nuclear membrane that forms the endoplasmic reticulum. एंड उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल फ्रेमवर्क या सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, है ना? यू रिमेम्बर दैट प्रॉपर्ली? याद है थोड़ा बहुत? राइट. एंड टू टाइप्स ऑफ ER we had seen, rough and smooth. So the rough one was because of the presence of ribosomes on the surface of the endoplasmic reticulum. Okay, then the next one was Golgi apparatus. So Golgi complex जो है that was like it is associated with the Golgi apparatus. कि whatever functions the endoplasmic reticulum does, उसका continuation Golgi apparatus का. You remember मैंने example दिया था पिज्जा वाला, है ना? So something is prepared and something is packaged and delivered. तो वो Golgi complex करते हैं. And you remember there was made up of सिस्टर्ने, tubules, vesicles, ये सब चीजें उसके बने रहते हैं, right? Now vesicles of the Golgi complex, okay, they in continuation they become the lysosome. They are separate organelles in the cell, but sometimes even the Golgi complex in association with some vesicles, they can give rise to lysosomes. Okay, so when you talk about lysosomes, these are also known as dismantling and restructuring units in a cell. Okay, normally हम लोग lysosomes को जानते हैं ये बोलकर कि they are suicide bags of the cell. Okay, ये सुना रहेगा, है ना? So that is correct, but not all the lysosomes. Suicide bag हर एक lysosome को नहीं बोलते. So for entirely for lysosomes, the correct thing to say would be dismantling and restructuring units. Okay, dismantling का मतलब है breakdown and restructure मतलब फिर से बना, assembly कर. So some parts of the cell they need to be broken down. Cell के part को ही तोड़ देना and फिर से उसको दोबारा से बना देना. तो ये दोनों काम जो है वो lysosomes. That's why this is the better word to say overall for all the lysosomes. Okay, now talking about lysosomes, see the word is lyso and lysis का मतलब है breakdown, उससे word आया lysosome. Okay, so soma मतलब organelle. So lysosomes arise from the Golgi associated endoplasmic reticulum. ये पार्ट अच्छे से समझ जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स, उसमें से एसोसिएट होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम दैट गोल्गी इट अराइजेस द लाइसोसोम्स. दैट्स व्हाई दिस इज ऑल लर्नड इन कंटिन्यूएशन. ओके, दे आर टुगेदर वर्किंग आउट सम फंक्शंस, ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं. ओके, सो दे अराइज फ्रॉम गोल्गी एसोसिएटेड ER and they are membrane bound vesicles which contain hydrolytic enzymes. Okay, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि lysis का काम करते हैं, breakdown का काम करते हैं. So lysosomes have a single membrane around them, okay, and they contain hydrolytic enzymes. So उसके अंदर बहुत सारे enzymes, more than 40 different types of enzymes are found to be present within the lysosomes. ये उसका specificity. Okay, and all the enzymes which are present in the lysosome, they are mostly used to digest the macromolecules.
तो सेल के अंदर जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, अब सेल के किसी पार्ट को अगर डाइजेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है, तो यू हैव अंडरस्टूड द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So they are made up of cellulose, lipids, proteins. So ये मैक्रोमोलेक्यूल्स हो गए. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना मतलब इन मोलेक्यूल्स को डाइजेस्ट करना. एंड फॉर दैट देयर आर एंजाइम्स. So these enzymes, they do that work. Okay, we will come to the point कि why will a cell need to digest these parts. Okay, वो भी देखते हैं. And the we will learn this in detail in the case of biomolecules later. कि whenever there are enzymes, इनका functioning जो होते हैं, at least you must be aware about the fact that enzymes are biocatalysts. Correct? They regulate any kind of metabolic activity within a cell. तो उनका metabolic activity का जो speed है, that is regulated by enzymes. But enzymes का functioning के लिए there has to be some specific pH. You know pH level. कि एकदम acidic या alkaline या neutral, right? तो अगर pH acidic होगा, then these enzymes of the lysosomes will show optimum activity. Optimum activity मतलब the maximum activity. Okay, in the case of acidic pH. Okay, so there are all different types of enzymes which are categorized under one group, which are called hydrolases, because they bring about hydrolysis. So examples है जैसे amylase, protease, lipases. Because जितने टाइप के मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं सेल में जिनको डाइजेस्ट करना है, उसी हिसाब से वो एंजाइम्स भी होते हैं. तो लाइक amylases, they digest starch. एंजाइम्स का कैसा होता है कि ऑन वॉट एवर मॉलिक्यूल दे एक्ट, उसको बोलते हैं उसका सबस्ट्रेट. तो एवरी एंजाइम हैज गॉट इट्स ओन फिक्स्ड सबस्ट्रेट. कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा. इट्स लाइक अ लॉक एंड की, यू कैन नॉट ओपन एनी लॉक विथ एनी की. ओके, तो उसी हिसाब से एंजाइम्स का भी अपना फिक्स्ड सबस्ट्रेट होता है. तो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर नीडेड. जैसे अमाइलेसिस हुआ तो स्टार्च का डाइजेशन, proteases for protein digestion, lipases for lipids. So you remember human nutrition we had seen, कितने सारे एंजाइम्स आते है ना, तो सबका अपना अपना फिक्स सबस्ट्रेट था. तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वो प्रोटीन्स पे ही काम करते थे, लाइपेसेस वो लिपिड्स को ही डाइजेस्ट करते थे. So they are fixed. That's why in the lysosomes all these different types of hydrolysis are present. कि कब किसका जरूरत पड़ जाए पता नहीं. ठीक है. And normally all these enzymes in the lysosomes, they are in an inactive state, because ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जरूरत नहीं है फिर भी डाइजेस्ट किए जा रहे सेल को. जब जरूरत हो तभी रहना चाहिए. इट्स लाइक द सीलिंग फैन इन योर रूम. जब चाहिए तब मैंने स्विच ऑन किया ना. Getting it? Otherwise the fan will always be on even if you don't require it. So it's a wastage of energy. तो एक स्विच होता है ना. तो और जब वो स्विच ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं कि सीलिंग फैन को भी निकाल के मैंने नीचे रख दिया. राइट, द फैन इज ऑलवेज देयर इन द सेम प्लेस. इट्स जस्ट दैट द स्विच इज ऑन और ऑफ. तो यहाँ एंजाइम का भी ऐसे ही है कि नॉर्मली वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, बट ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करना है, कुछ और पार्टिकल या फॉरेन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है, सो देन इट इज एक्टिवेटेड, so that there is no wastage and it does not work unnecessarily. तो लाइसोसोम कैसे काम करते हैं इसके एंजाइम्स कि with this lysosome will come in contact with any other cell organ जिसको डाइजेस्ट करना. तो जैसे वैक्यूल को डाइजेस्ट करना, तो लाइसोसोम will bind to the vacuole, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, तब लाइसोसोम के एंजाइम एक्टिवेट होंगे और the vacuoles will be digested. ओके, सो ये इनएक्टिव एंड एक्टिव स्टेट. एंड एंजाइम एक्शन का हो जाने के बाद दे कैन ऑलवेज बी रीफॉर्म्ड एंड रीयूज्ड. एज मच एज पॉसिबल दे रीयूज इट, सो दे आर अवॉइडिंग एनी वेस्टेज. एंड उसमें क्या हो जाता है कि अगर एंजाइम एक ही बार यूज करके डिस्ट्रॉय कर दिया, सो द सेल विल हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस दैट एंजाइम वंस अगेन. सो दैट विल अगेन रिक्वायर एनर्जी.
तो वो भी अवॉइड करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर रीफॉर्म्ड एंड रीयूज्ड। एंड पॉलीमॉर्फिक रहते हैं। पॉलीमॉर्फिक मींस लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक। अभी हम लोग लाइसोसोम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइसोसोम व्हिच हार्डली हैज एनीथिंग। सेल के अंदर लाइसोसोम कैसे दिखेगा? यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक दिस, बस एक सिंगल स्फेरिकल टू ओवल स्ट्रक्चर हैविंग अ मेम्ब्रेन अराउंड इट, नथिंग एल्स। तो स्ट्रक्चर वाइज इसमें कुछ नहीं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी एट सीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। It just looks like this, and there are many such organelles in the cell which just look like this. And इसके अंदर inside the lysosome there is a fluid present which is nothing but a mixture of all the enzymes. But lysosomes are polymorphic, मतलब there are different types of lysosomes. So we will come to that now. Okay, यहाँ तक समझा अच्छे से? Broad idea about the lysosomes. ठीक है, so let us see the types. Now talking about lysosomes, they are categorized as primary lysosome, first one, and the other one is secondary lysosome. Okay, primary lysosome का मतलब क्या है? They are membrane bound vesicles. जैसे spherical से छोटे structures होते हैं single membrane around them. इनके अंदर के enzymes होते हैं, they are in an inactive state. They are not functioning, but they are present. ऐसे लाइसोसोम को बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, द अदर वन इज सेकेंडरी या हाइब्रिड लाइसोसोम। ये क्या होते हैं? दे आर लाइसोसोम्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ वेसिकल विद एनी अदर मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड। प्राइमरी लाइसोसोम में सिर्फ एक वेसिकल होता है, एंजाइम्स इनएक्टिव रहते। सेकेंडरी का मतलब है लाइसोसोम फ्यूजिंग विद एनी अदर मटेरियल जिसको डाइजेस्ट करना, तो उसको बोलते हैं हेटेरोफेजिक वेसिकल, ओके, और हेटेरोफेजिक लाइसोसोम। एंड दीज आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज कंपेयर्ड टू द प्राइमरी लाइसोसोम। So this is one way we are classifying lysosomes, primary and secondary. ठीक है, समझा? ये देख, ये गोल्गी apparatus, इसके वेसिकल्स बन गए प्राइमरी लाइसोसोम जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स है। And when these primary lysosome fuse with any other organelle or any other particle to be digested, तो फ्यूजन के बाद बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। It's simple. कि मतलब प्राइमरी वाला ही सेकेंडरी बन जाता है। Yes. नॉर्मली सेल के अंदर प्राइमरी रहेगा बिकॉज किसी और पार्ट को डाइजेस्ट करना, किसी और फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना है, ये हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगा ना। Whenever it is required, the primary lysosome is turned into secondary. But primary पहले रहना ही चाहिए, बिना प्राइमरी के सेकेंडरी बनेगा ही नहीं। Got it? Okay? अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बीच में डिफरेंसेस टू अंडरस्टैंड देम इन डिटेल। ओके, तो क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्टली, primary lysosome, as we said, they are membrane bound sac which buds off from the Golgi apparatus. Golgi complex का सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये तीन हमने बोले थे। तो उसके वेसिकल्स जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, they become primary lysosome which contain the enzymes in inactive state. Okay, and secondary lysosome means they are formed by the combination of a primary lysosome and an endosome. Endosome मतलब any other organelle or a particle which has to be digested, which has to be destroyed. तो primary lysosome का उसके साथ एक combination में hybrid structure बनेगा, then it's a secondary lysosome. Okay, second point is the size. As I said कि primary lysosome is small in size, comparatively secondary lysosomes are larger in size. ठीक है, then they contain inactive enzymes, primary lysosome, because ये जब जरूरत पड़ेगा तभी एक्टिवेट किया जाता है।
So they contain enzymes, but they are in an inactive state. They cannot function unless activated. So वो digestive enzymes होते हैं, and they are present in the form of granules. And secondary lysosomes, they contain active digestive enzymes ready for hydrolysis. Okay, inactivate का activate होने के बाद secondary lysosome. तो जब ये primary lysosome किसी और particle के साथ fuse करेगा, then the enzymes will be activated. Okay, and primary lysosome themselves do not undergo digestion. Secondary lysosome can undergo digestion. वो खुद को destroy कर सकते हैं. Okay, because primary lysosome में enzymes inactive है, तो digestion नहीं होगा. Secondary lysosomes enzymes are active, so they will undergo digestion. Okay, and primary lysosomes are unable to eliminate their contents to the outside of the lysosome because a complete intact organelle. But secondary lysosome के पास वो capability है कि they can eliminate their contents to the outside of the cell after digestion. Okay, so secondary lysosome can come towards the plasma membrane and discharge their contents outside. कि for example, you imagine कि किसी living healthy cell के अंदर कोई foreign particle, maybe a pathogenic particle, has entered, and the lysosomes, the primary lysosome in the cell is activated. कि ये so and so bacteria नजर आ रहा है, उसको destroy करना. The primary lysosome will go attach to the bacteria, become a secondary lysosome, digest the bacteria, drag it towards the membrane, throw everything out. Imagine cell के अंदर क्या mechanism होगा कि as much as possible harmful particles को अंदर नहीं आने देते या destroy नहीं करने देते. That's how they function. Now is it clear about the difference between primary and secondary lysosome? अच्छी तरह से है ना? Okay. There is one more way to classify it. Two more types of lysosomes we can say, just independent types. पहला होता है autophagic vesicles, and these are actually called as suicide bags. हम लोग पूरे lysosomes को suicide bags of the cell बोल देते हैं. It's not all of them. Primary lysosomes are not the suicide bags. Okay, autophagic vesicle क्या होता है कि any other damaged cell organelle, अभी कोई लिविंग सेल है, ओके, उसके अंदर इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स है, एवरीथिंग इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, ड्यू टू सम मे बी एन इन्फेक्शन और एनी अदर irregular metabolism within the cell organelle is not functioning properly and it is posing a threat to the other nearby healthy cells. तो वो बाकी के हेल्दी सेल्स को ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड करे उसके पहले अगर वो खुद को डिस्ट्रॉय कर दें, so other healthy cells will be protected. So that's the main reason it becomes a requirement that some lysosomes, they will have to take a decision that they will destroy themselves so that the others are not affected. So it's like ultimately kind of a suicide, है ना, कि खुद को डिस्ट्रॉय कर दी ताकि बाकी लोग बच जाए. तो ऐसे टाइम पे जो लाइसोसोम्स होते हैं जो ये काम करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोफेजिक वेसिकल्स. ऑटोफेजी एंड हेटेरोफेजी दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फेजी का मतलब है फीडिंग या ईटिंग, हेटेरोफेजी मतलब ईटिंग समथिंग एल्स, कि बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस का पार्टिकल है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, एनी अदर फॉरेन पार्टिकल. ऑटो का मतलब है सेल्फ, तो खुद के ऑर्गेनल को ही डिस्ट्रॉय करो, not any other outside particle. So earlier one that we saw was heterophagic vesicle, a secondary lysosome. This one is autophagic vesicle. So out of all the types of lysosomes, the ones which are autophagic, उनको हम बोलते हैं suicide bags, because only these are the ones which can destroy themselves. Okay. So every week, example के लिए every week, cell from the human liver, hepatocyte करके बोलते हैं, they can recycle half of its own macromolecules.
लीवर का मेटाबॉलिक फंक्शंस बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टेंटली द लीवर हैज टू कीप अ चेक, डिटॉक्सिफाई करना है, राइट? एनी अदर सेल इज गेटिंग इन्फेक्ट, लीवर के सेल खुद डिस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, तो बाकी के सेल्स डैमेज ना हो इसलिए ऑटोफेजिक वेसिकल बनते हैं, तो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। तो ऐसे वेसिकल को बोलते हैं ऑटोफेजिक वेसिकल और सुसाइड ट्रैक्ट्स। समझा? Okay, and then the next type is something called residual body. Now from the name itself it can be understood कि पूरा digestion सब हो जाने के बाद like a residue, a vesicle which contains undigested remains. Okay, कि digestion कर दिया and जो बचे कुछ kind of a waste product after digestion which is discharged in the cytosol, cytoplasm. उसके बाद जो वेसिकल बचा हुआ है आफ्टर डाइजेशन विच मे कंटेन सम अनडाइजेस्टेड रिमेन्स, इस तरह के लाइसोसोम को बोलेंगे या वेसिकल को बोलेंगे रेसिड्यूअल बॉडी। ओके, तो इट्स लाइक एन एक्सक्रीटरी वेसिकल वी कैन से, विच कंटेन्स ओनली द वेस्ट मैटर आफ्टर डाइजेशन। ये दोनों टर्म्स का मीनिंग समझा, ऑटोफेजिक वेसिकल एंड रेसिड्यूअल बॉडी। And earlier one that we saw was heterophagic vesicle, that is secondary lysosome and primary lysosome. ये differences समझा सबके बीच में अच्छी तरह से, है ना? So ये lysosomes के different types है, that's why lysosomes structure wise they are nothing. एक single spherical structure है, membrane है, अंदर पूरा enzymes का soup है, okay, but function wise they are different. एंड ये सेल्स के लिए कितना जरूरी है, एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट सीन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में होते हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ। ओके, नाउ लाइसोसोम्स अभी और बाकी है, देखिए सी लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस। तो लाइसोसोम्स जो डाइजेशन करते हैं वो दो तरह के होते हैं। ओके, डाइजेशन ब्रॉट अबाउट बाय लाइसोसोम इज ऑफ टू टाइप्स। First one is intracellular digestion. It can be any type of lysosome. Primary तो digestion नहीं करेगा, secondary, autophagic, heterophagic, any of the lysosome when they bring about digestion, they can be either intracellular or extracellular. Intracellular, intra का मतलब है within, जैसे इंट्रा-कॉलेजिएट कंपटीशन करके बोलते हैं, तो कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ द सेम कॉलेज, तो इंट्रा, है ना? तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोफेजिक वेसिकल या सेकेंडरी लाइसोसोम, ये लोग करेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग। तो बाहर से कोई पार्टिकल सेल के अंदर आया है एंड सेल के अंदर उसको खा रहे बैठ, तो एनी टॉक्सिक कंपोनेंट पैथोजन उसको पकड़ के अंदर लाए कि चल अब तेरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल आएगा फूड वैक्यूल इन अमीबा, यू नो अमीबा, व्हाट डू यू थिंक एन अमीबा ईट्स? अमीबा क्या खाता रहेगा? वो नहीं पता, उसके पास कुछ आता है तो उस फूड अपना बाहर करते उसको अंदर ले लेता है हाँ, फिर। वो सीडोपोडिया, वी हैव सीन दैट। हाँ, तो वो क्या खाता रहेगा, लेकिन कुछ भी तो नहीं खाएगा ना। छोटे छोटे प्लांट्स वो सब भी खाता रहेगा ना। ओके, प्लैंक्टन्स उससे भी छोटे, लाइक हाँ व्हिच आर स्मॉलर इन साइज देन द अमीबा, और यू कैन से एनी अदर हाँ ऑर्गेनिक पार्टिकल व्हिच इज डाइजेस्टिबल। तो अमीबा के सेल के आसपास इफ एनी प्रोडक्ट इज देयर, जैसे ये देखो, नाउ दिस इज अमीबा, ओके, ये जो पिंक में दिखा है ये कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल है जो अमीबा खाना चाहता है, तो इट विल प्रोड्यूस pseudopodia, it will cover that pseudopodia and bring that particle inside. तो अमीबा के अंदर वो पार्टिकल के साथ मिलकर एक फूड वैक्यूल बन जाएगा which is having the particle inside. That food vacuole will bring about digestion, and वो डाइजेशन करने के लिए उसको बोलेंगे फैगोलाइसोसोम।
तो जो पार्टिकल था उसको डाइजेस्ट किया, उसका एनर्जी मिल गया, एंड आफ्टर डाइजेशन व्हाट विल हैपन, एक और वैक्यूल बनेगा जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो उसका वेस्ट मैटर को बाहर छोड़ देगा। तो इसमें क्या हुआ, व्हाई इट इज इंट्रासेल्यूलर, बिकॉज इट इज प्रेजेंट, द डाइजेशन इज हैपनिंग इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। सिमिलर थिंग हैपेंस इन मैक्रोफेजेस इन द ह्यूमन ब्लड, जो अपने WBCs होते हैं। वी हैव आवर बेसिक इम्यून सिस्टम, so as an individual we are always exposed to some or the other pathogens around us, है ना। अपने you can imagine कि when we are speaking our mouth is open, the ears are always open, we are constantly inhaling and exhaling, you cannot avoid that, eyes are open, right, you whenever you eat food, हम लोग कितना भी हाइजीन का ख्याल रखें, but there is always a chance that some or the other pathogenic particle will be there along with the food। तो बहुत सारे रास्ते जिससे पैथोजेंस अपने शरीर में जाते हैं अंदर, बट आवर WBCs हैव गॉट दिस कैपेसिटी कि जैसे इस तरह के पार्टिकल्स आए वो हमला बोल देते हैं, एंड दे बिकम मैक्रोफेजेस, के पार्टिकल्स को पकड़ पकड़ के खा लेते हैं। तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, so up to a large extent we are having that protection। तो ऐसे हर बार हम लोग इसलिए बीमार नहीं पड़ते, because macrophages are constantly active and they are also bringing about digestion within the cell in the same way। Same way, another thing is extracellular digestion। Extracellular means digestion happening outside the cell। Okay, तो इसमें क्या होगा, लाइसोसोम अपने एंजाइम्स सेल के बाहर रिलीज करते हैं एंड देन दे ब्रिंग अबाउट डाइजेशन। इसका एग्जांपल है द ह्यूमन स्पर्म एंड द ओवम, which we are going to learn in detail in reproduction in human beings। इसमें कैसा होता है कि सी स्पर्म, ओके, इट कैरीज द मेल गैमेट, इट इज द मेल गैमेट। तो स्पर्म में हेड पोर्शन होता है हैविंग इट्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस, राइट, एंड ओवम इज द फीमेल गैमेट। ओके, ना ओवम का जो वॉल है, इट हैज गॉट 3 layers। outermost layer is something called zona pellucida, sorry, there is something called corona radiata layer। second layer is zona pellucida, एक ओवम जिसके अंदर एक फीमेल गैमेट। okay, now this sperm when it comes it has to cross all the 3 layers and then enter the ovum। तो स्पर्म के हेड में जो मेल न्यूक्लियस है, above the nucleus you can see this labeling called acrosome। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है। तो ये acrosome is nothing but a modification of the lysosome which is derived from Golgi apparatus। and acrosome के पास वो enzymes होते। ओके, सो जैसे कोरोना रेडिएटा फर्स्ट लेयर, उसमें अलग अलग सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं and they are stuck to each other by something called hyaluronic acid। तो एक्रोसोम क्या करेगा, हाइलुरोनिडेज करके एक एंजाइम रिलीज करेगा which will separate the cells of corona radiata, एक लेयर अंदर। नेक्स्ट आएगा जोना पेलुसिडा, ये पूरा एक दीवार के जैसा लेयर है, अ वॉल लेयर। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्रोसोम विल रिलीज अनदर एंजाइम जोनालाइसिन, एंड वो दीवार में ऐसे ड्रिल करते करते अंदर जाएगा, and then finally the head of the sperm will be inside। so now here what is happening, no digestion is taking place inside the cell। sperm के head के cell के अंदर नहीं हो रहा है, the enzymes are released outside and digestion is taking place outside। इसीलिए this is extracellular digestion। understood this? तो लाइसोसोमल डाइजेशन के 2 टाइप समझ में आ गए अच्छे से, ठीक है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सेल के अंदर इन सब चीजों का कितना जरूरत है कि डाइजेशन करते रहेगा तब बहुत सारा, लाइक द बॉडी इज एबल टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, डिफेंस,
protection against any harmful particles, right, across various different types of cells. That is lysosomal digestion. Okay, now ये जो figure दिया है, this is from your textbook. Lysosome appears somewhat like this. Okay, एक ऐसा गोल सा structure है and इसके अंदर पूरा वो matrix है या fluid whatever you say, जिसमें enzyme complexes having a single wall membrane. Okay, so lysosomal, अभी क्वेश्चन क्या आता है पता है कि इसी lysosomes के अंदर इतने सारे enzymes, more than 40 different types जो एक स्ट्रक्चर के अंदर डाल के रखा हुआ है. तो why doesn't happen कि lysosome के enzymes उसी के खुद के मेम्ब्रेन को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहे हैं? राइट, इट्स लाइक स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है जो खाना डाइजेस्ट करते हैं, तो वो गैस्ट्रिक जूस स्टमक को ही क्यों नहीं डाइजेस्ट करते? लाइसोसोम को इस बात का भी पीएच इज आल्सो देयर, एंड दूसरा ये है कि लाइसोसोमल एंजाइम उसका जो स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन्स के बने हुए रहते हैं, सो 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि वो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होके डाइजेशन कर ही नहीं पाए, बिकॉज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है डाइजेशन के लिए, तो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बने. ओके, एंड द अदर थिंग इज द पीएच, एज यू सेड कि वो साइटोसॉल का पीएच जो है नियर न्यूट्रल होता है, ना वेरी एसिडिक नॉर वेरी अल्कलाइन, so that's why they are able to remain as intact cell organs. Okay, and another important, lysosomes का association है genetic disorders के साथ, कि sometimes lysosomal enzymes अगर deficient रहेगा, if they are not produced in the required quantities, insufficient, that can give rise to genetic disorders. मतलब now you can correlate this with you remember protein synthesis, heredity में पढ़ाया था, transcription, translation, है ना? So that always begins with a gene. A gene or a DNA will first undergo transcription followed by translation, है ना? तो लाइसोसोम के एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स है, एंड वो प्रोटीन बनाने के लिए कोई जीन होना चाहिए. So if that gene is not functioning properly or it is a latent gene, तो उसके वजह से लाइसोसोम का कोई corresponding enzyme नहीं बनेगा, because of which there won't be any required digestion taking place, and that can give rise to genetic disorder. उसका example देख, Tay-Sachs disease, which is an example of a genetic disorder caused due to deficiency of lysosomal enzymes. तो लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है लाइपेज. लाइपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, बट समटाइम्स इन ह्यूमन बीइंग्स लाइपेज एंजाइम विद इन द लाइसोसोम्स आर इनसफिशिएंट, तो फैट्स का डाइजेशन नहीं होता है, तो ह्यूमंस में ब्रेन के आसपास फैट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ब्रेन ऐसा सूजा हुआ रहता है. दैट्स अ कंडीशन कॉल्ड Tay-Sachs disease. See this. It's a genetic disorder because this is something every cell should be producing this enzyme. So constantly the extra fat around the brain cells should be digested. तब वो brain functioning बनता रहे, but यहाँ पे वो हो नहीं रही. तो lysosomes का यहाँ तक correlation. मतलब फिर सर बड़ा होते जाता है. हाँ, बड़ा होते जाता है. Because brain के आसपास fat accumulate होना शुरू हो जाता है ना, and even the functioning of the brain is affected. ओके, तो मतलब वो पाम मूवी था ना, उसमें अमिताभ हाँ, बच्चन का somewhat. सर. But that was another syndrome. वो Tay-Sachs नहीं था, but वैसे ही कुछ है सर. हाँ, but वो भी ऐसी था, सर बड़ा था उनका. Correct. Right? So genetic disorders is like totally different branch of study actually. इतने सारे disorders हैं. But the best part is that scientifically we are able to understand why it happens, जो पहले लोग नहीं जानते. So now you can see कि cytology का कुछ part we are correlating with genetics and we are able to come to human diseases. Correct?
तो ये इसका एसोसिएट कर सकते हैं, यू रिमेम्बर स्टेम सेल्स जो हमने स्टडी किए थे, है ना, कि अभी ये जैसे बच्चा है तो व्हेन ही वाज एन एम्ब्रियो, उस टाइम पे स्टेम सेल्स को अगर चेक करते कि ऐसा कोई डिसऑर्डर है कि नहीं, वेदर द सेल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो स्टेम सेल्स आर वेरी लेस इन नंबर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में। सो उसी वक्त अगर पता चल जाए कि ऐसा ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होने का चांसेस है, तो फॉर दोस लेस नंबर ऑफ सेल्स द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। बट अब जब ये बच्चा का इतना एज हो गया है, द सेल, देयर आर सो मेनी सेल्स इन द बॉडी, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज एवरीथिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। दैट्स द रीजन जेनेटिक डिसऑर्डर का सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल। Okay, that is possible. तो अंडरस्टैंडिंग हो तो अकॉर्डिंगली वन कैन फाइंड आउट द ट्रीटमेंट ऑल्सो। ये सब क्लियर है लाइसोसोम्स का? ओके, कितना कुछ है ना लाइसोसोम में, राइट? ओके, लाइसोसोम का फंक्शंस का एक और एग्जांपल। ओके, दिस इज इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग। यू नो वेरी वेल, फ्रॉग के लाइफ साइकिल में मेटामॉर्फोसिस होते हैं। Like adult frog, when the female lays the eggs will hatch and turn into embryo. Eggs के अंदर embryo होते हैं जो tadpoles होते हैं, and the tadpole they have got a tail. Okay, and tadpole के पास tail भी होता है, and when the tadpole grows further, उसके पास 2 legs और 4 legs भी आते हैं। तो frogs के young ones में ऐसा भी stage मिलेगा where it has got a tail and it has got legs. But before turning into an adult frog, the tail must be lost, because an adult frog does not have a tail. So कोई organ है tail जो young one में है but adult stage में नहीं है, metamorphosis हो रहा है। So that means all the cells in the tail, their lysosomes will be activated and they will digest each and every one of them so that the entire tail is ultimately lost. तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी लाइसोसोमल एंजाइम्स का रोल आ गया कि टेल को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि एडल्ट स्टेज बने। तो समटाइम्स इसके लिए भी ये डिस्ट्रक्शन जरूरी है, सो दैट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस, करेक्ट? एंड द अदर एग्जांपल इज मैलिग्नेंट सेल्स। यू नो कैंसर, राइट? कैंसर बिगिंस विद समथिंग कॉल्ड ट्यूमर। ओके, तो ट्यूमर क्या होता है कि it can happen to any part of the body. Suddenly one fine day any part of a body can have cancerous condition, tumor condition. उसमें क्या होता है कि सेल्स जो है वो इतने ज्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं कि their division goes beyond control and gives rise to a mass of cells. उसको बोलते हैं ट्यूमर। So there are 2 types of tumor, benign tumor and malignant tumor. बिनाइन ट्यूमर का मतलब है कि सेल्स डिवाइड होके एक ऐसा बंच बन गया बट इट हैज फॉर्म्ड अ कैप्सूल अराउंड इट कि उससे ज्यादा वो डिवाइड नहीं कर सकता, इट इज जस्ट लोकलाइज्ड। तो अगर वो डिटेक्ट हो गया तो दैट एंटायर बिनाइन ट्यूमर कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड एंड देन द पर्सन इज फाइन। दैट्स व्हाई बिनाइन ट्यूमर इज हार्मलेस। बट अगर वो सेल्स ऐसे डिवाइड हो रहे हैं कि उसके आसपास एक कैप्सूल या कवरिंग नहीं बन रहे हैं and the cells are spreading to other parts of the body via blood, then such a tumor is called malignant tumor and that leads to cancer. तो इसलिए early detection is a must in cancerous conditions. जितना जल्दी डिटेक्ट करें उतना अच्छा से ट्रीटमेंट हो जाए। तो किसी भी तरह का एबनॉर्मल सिम्टम सेल्स में वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसमें जैसे अपने शरीर में WBCs का एक टाइप है विच इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, वो डिस्ट्रॉय करते हैं मैलिग्नेंट सेल्स टू सम एक्सटेंट। तो उसके लिए अगेन लाइसोसोम्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो ऑल दिस यू कैन इमेजिन कि अपने सेल्स में टिश्यूज में क्या क्या चलता रहेगा।
and this is just one part of it we are seeing now, right? Everything about lysosomes are clear. ठीक है, तो ये आज का पहला पार्ट हुआ lysosomes. ठीक है, let's go to the next one. See, lysosomes अभी हो गया. We will discuss about vacuoles after this. Vacuoles के बाद microbodies followed by mitochondria. And if time is there, we will continue with plastids also. चलेगा, है ना? So that उसके बाद जो बचा हुआ that will be completed in the next session. Right? Okay. So after lysosomes, now the next thing is vacuoles. Okay. You know very well vacuoles. हम लोग इसको storage godowns भी बोलते हैं. And we have seen the overview about plant cell and animal cell. So you know कि plant cell में there is a large vacuole mostly in the center, and animal cells में the vacuoles are small and many scattered in the cell. So vacuoles are also membrane bound sacs. Structure wise हम देख के lysosome और vacuole को differentiate नहीं कर पाएंगे. They will be just like small spherical particles, organelles, and they are mostly very prominently found in plant cells. Okay, and in animal cells they are few in number and small in size. Plant cells mein there are larger ones. Plant cells mein there are 2 to 3 large permanent vacuoles which can be found. Okay, and that's why any one random cell which is shown, एक तो हम cell wall को देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये plant cell है, and secondly the large vacuole. Okay, so there is a large central vacuole in a plant cell which can occupy 90% of the total volume of the plant cell. You remember the plant cell structure जो हमने देखा था ना, बड़ा सा एक स्विमिंग पूल जैसा वैक्यूल बीच में, जिसके वजह से बाकी ऑर्गेनल सब साइड में शिफ्ट हो गए, राइट? इट कैन ऑक्यूपाई 90%. तो उससे ऐसे वैक्यूल को बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल. ठीक है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट वैक्यूल, तो वैक्यूल में द मेम्ब्रेन, इट्स हैविंग इट्स ओन मेम्ब्रेन अराउंड इट. उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट. Okay, the membrane of the vacuole, it is called as tonoplast, and inside the vacuole whatever fluid is present, इसको vacuolar fluid करके बोलते हैं, that is different from the cytosol or the cytoplasm. vacuole जो है वो cytoplasm में, तो cytoplasm का fluid और vacuole के अंदर का fluid, there is a difference. तो vacuole के अंदर के fluid को हम बोलते हैं cell sap. Okay, so membrane is called tonoplast and the composition of the fluid inside is called cell sap. ये दो terms याद रखना. ठीक है. Cell sap में क्या क्या रहेगा inside the vacuole? जैसे lysosome में क्या था, enzymes था. तो here vacuoles के cell sap में it's a storehouse of many ions, and that's the reason cytosol और cell sap दोनों का concentrations अगर compare करेंगे तो cell sap का concentration is hypertonic. It is having more amount of dissolved materials or solutes as compared to that in the cytoplasm. And cell sap और cytosol के बीच में ये main difference है. Okay. And sometimes जैसे now see we are talking in general about eukaryotic cells, तो plant cell, animal cell सब अलग अलग है. So according to the requirement of the cell, some organic materials will be more in amount in some cells as compared to the others. तो जैसे seeds है कुछ plants के, उसके cells के अंदर का vacuoles अगर देखेंगे तो they might have organic materials like proteins which some other cells may not have. Okay, and sometimes के cell sap के अंदर कुछ ऐसे excretory material भी store करके रखते हैं so that when that particular part becomes old they are falling off.
प्लांट्स में दे डोंट हैव एनी सेपरेट एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज वगैरह नहीं होते प्लांट्स में. So all the waste matter is diverted to the old parts of the plants. कि plants में जो leaves होते हैं, जो एक टाइम आएगा जब वो पूरा ब्राउन होके सूख जाएंगे और गिर जाएंगे, तो उनके सेल्स के वैक्यूल में एक्सक्रीटरी मटेरियल सब पास ऑन करके रखते हैं, so that when that part will fall, the waste matter is gone from the body. And plants के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि wherever they are growing, they have to just survive there. तो एनिमल्स आएंगे, उसके पत्ते खाएंगे, प्लांट्स को नहीं अच्छा लगते, क्यों मेरे पत्ते तोड़ के खा रहे. सो दे हैव टू डेवलप देयर ओन डिफेंस. तो मेनी प्लांट्स व्हाट दे डू, उनके सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर ऐसे हार्मफुल कंपाउंड्स बना के रखेंगे कि एनिमल्स अगर आके खाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. तो वन टाइम द एनिमल माइट कम एंड ईट, बट उसको पता चलेगा कि नहीं ये डाइजेस्ट करने लायक नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम द प्लांट वोंट बी अफेक्टेड. तो हार्मफुल कंपाउंड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये देखना ऐसे नीडल शेप स्ट्रक्चर्स. ओके, वैक्यूल्स के अंदर ये स्टोर्ड रहेगा, रफाइड्स बोलते हैं इसको. कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स रहेंगे या बड़े बड़े क्रिस्टल्स होंगे, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स. तो ये सेल्स के अंदर इतना सारा जमा करके रखेंगे कि एनिमल्स जब इनको खाएंगे, इट विल इरिटेट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. So next time those animals will avoid eating these plants. तो जैसे अपना ग्रास है, लॉन ग्रास, उसके पत्तों का सेक्शन लेकर देखेंगे ना, you will come across lot of silica grains या silica crystals. The animals avoid that. Okay, so it's a kind of a defense. And vacuoles are the ones containing cell sap जिसमें colored pigments होते हैं. तो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को अलग अलग कलर्स जो मिलते हैं, पिगमेंट्स आर कलरिंग एजेंट्स. तो वो वैक्यूल्स में पिगमेंट्स रहते हैं. जैसे सी दिस, कैन यू टेल मी विच फ्लावर इज दिस? ये यहाँ नहीं देखा रहेगा, ये ठंडे क्लाइमेट में ग्रो होता है. बिस्किट जैसा है कुछ. नॉट एग्जैक्टली, बट ठीक है. अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, मिठाइयाँ बनेंगी. हाँ. मिठाई के ऊपर हम रेड कलर का कुछ गार्निश करते हैं, यू नो दैट, खीर वगैरह में डालते हैं. केसर. करेक्ट. गुड, दैट इज केसर. ओके. ओके, ये जो केसर है ना, उसका स्टाइल एंड हाँ. स्टिग्मा, दैट केसर दैट वी कंज्यूम, जो पीस आता है ना, वो उसका स्टाइल और हाँ. स्टिग्मा है. दैट इज व्हाट वी कंज्यूम. ओके, तो स्टाइल एंड स्टिग्मा कंटेन्स द पिगमेंट. जैसे ही हम केसर लेते हैं एंड यू एड इट टू मिल्क, कैसे उसके कलर छोड़ते, देखना ऑरेंजिश येलो कलर है, वो पिगमेंट्स. एंड वो पिगमेंट्स उसके सेल्स के वैक्यूल्स. Okay, that is the example shown over here. So like that you can imagine any other pigment, जैसे हल्दी, yellow color. You can imagine beetroot. Beetroot में देखना क्या strong pigments होते हैं, है ना? So all these coloring agents in the nature are present or stored in the vacuoles of the cells. ठीक है? And plants में सबसे ज्यादा होता है. That's why plant cells have large vacuoles. बहुत कुछ स्टोर करना होता है उसको. समझा? ठीक है. अब ये देख वैक्यूल्स के बारे में जो अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था. कैन यू टेल मी विच ऑर्गेनिज्म इज दिस? पैरागॉन चप्पल जैसा लग रहा है. पैरामीशियम. पैरामीशियम, करेक्ट. इट इज पैरामीशियम, राइट. तो पैरामीशियम को कैसे देखकर पहचानते हैं? फर्स्टली इट हैज गॉट टू न्यूक्लियस, अ स्मॉल न्यूक्लियस शेप एंड अ देख लार्ज के ही न्यूक्लियस. पता चल जाता है. एग्जैक्टली. शेप इज आल्सो स्लीपर शेप्ड. हाँ. ओके, 6 नंबर का चप्पल लग रहा है बराबर एकदम, है ना? सो पैरामीशियम जस्ट लाइक अमीबा, जैसा जहां अमीबा आएगा वहां पैरामीशियम भी. तो व्हाट डज अ पैरामीशियम ईट? वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑर्गेनिजम्स खाते एनी अदर सेल्स लाइक मे बी ईस्ट और समथिंग, जिससे उसको एनर्जी मिलेगा, वो खाना चाहेगा, राइट.
तो यहाँ पे वैक्यूल्स का क्या रोल है, जैसे अमीबा में हमने देखा था कि उसके आसपास जो भी कुछ पार्टिकल आएगा दैट विल बी टेकन इनसाइड द सेल एंड वो पार्टिकल के साथ मिलकर बनेगा एक फूड वैक्यूल. You can see the food vacuole written on there. Okay, so it's like it's a small vacuole which is created having the food matter inside it. तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, मैक्रोफेजी एंड इंजेशन, दैट मीन्स डाइजेशन, कि पहले पकड़ के अंदर लाएगा एंड देन इट विल eat, it will digest, and after the digestion is over that food vacuole turns into contractile vacuole. I remember when I was in college as SYMA or something, we were having this practical कि पैरामीशियम को जिंदा माउंट करना माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे, एंड देन वी हैड टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप कि वो कैसे खाते और कैसे छोड़ते. ओके, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू कि हम लोग ने पैरामीशियम का मटेरियल दिए थे, वी माउंटेड इट. ओके, कवर स्लिप हल्का सा लगाना था, and then we observed under the microscope, we were actually seeing that these paramecium, they were nicely swimming around. एक जगह टिके नहीं थे, तो ऐसे एक जेल जैसा मटेरियल डालकर थोड़ा सा उनका मूवमेंट हमने रेस्ट्रिक्ट किया था, and then we were given yeast solution, Saccharomyces cerevisiae. Okay, so paramecium can consume that. तो what we had to do कि जो स्लाइड है जिसमें पैरामीशियम को हमने माउंट किया हुआ है, we had it some few drops of the yeast solution. तो उसमें क्लियर दिख रहा था माइक्रोस्कोप में कि जैसे मैं ईस्ट सोल्यूशन डाल रहा हूं कि पैरामीशियम के एक साइड से वो ईस्ट अंदर जा रहा है, फूड वैक्यूल बन रहा है, डाइजेशन इज गोइंग ऑन द अदर साइड अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज क्रिएटेड एंड द वेस्ट मैटर इज गिवन आउट. एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जैसा दिख रहा था लिटरली. So vacuoles were doing the job. Food vacuole digest कर रहा है and contractile vacuole for excretion and osmoregulation. ये दो तरह के vacuole बनते हैं पैरामीशियम जैसे फॉर्म्स में, even in the case of amoeba. Okay, तो vacuoles का ये भी रोल है, right? And vacuoles का दूसरा फंक्शन है, they also help to maintain the turgidity of a cell. You know turgidity, ये वर्ड हमने बोला था. अभी यहाँ पे do you have any potted plant at your home over here? हाँ बहुत सारे. तो अभी now you are not in your home 3 to 4 days या maybe for a lot of days you are outside your home. तो वहाँ पानी कौन देगा plants को? Neighbor. अच्छा, good. But suppose 3 to 4 days के लिए you are outside and nobody is able to water your plants. हाँ, After तो 3 to 4 एकदम days what will happen? वो सूख जाएगा. एकदम सूख जाता है. So you will see that वो flaccid हो गया है. But जैसे ही पानी डालो it becomes turgid. Turgid. तो वैक्यूल्स जो है सेल्स के अंदर, ओके, उसके अंदर वो पानी आ जाता है. The water level increases along with that of the cytosol. इस वजह से सेल becomes turgid. तो वैक्यूल्स का ये भी फंक्शन, especially plant cells, कि they help to maintain the turgidity of the cell. So amount of water determines. तो water level अगर कम हो गया तो it won't be turgid, it will remain flaccid. That is another function of the vacuole. Okay, clear है vacuoles के बारे में? ये देख. So after understanding about vacuoles, now this you can understand as a summary. ये भी textbook का ही है. Okay, so we have seen endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles. Now this diagram is showing it to you like a summary. कि सेल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है which is derived from the plasma membrane. उसमें जो molecule बनेगा that will be coming out of it as a transport vesicle which will enter the Golgi complex from the cis phase, passing through the cisternae, getting processed and packaged and coming out from the trans phase.
एंड देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो वेसिकल्स डिराइव होते हैं दे बिकम लाइसोसोम्स। तो वो करेंगे या तो ऑटोफेजी या फिर हेटेरोफेजी। अगर वो हेटेरोफेजी कर रहे हैं तो फूड वैक्यूल बनेंगे, एंड फूड वैक्यूल आफ्टर द फाइगोसाइटोसिस इज ओवर इट विल टर्न इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो मतलब पहले एंडोप्लाज्मिक गिविंग राइज टू गोल्गी, गिविंग राइज टू लाइसोसोम, गिविंग राइज टू वैक्यूल्स। दैट्स व्हाई हमने इनको इसी ऑर्डर में पढ़ा। These are the major parts of the endomembrane system. अच्छी तरह समझा, right? Now you understood the pattern within the cell कि कैसे हो रहा है, and that's why these 4 parts that we saw, like if you include even the plasma membrane also, ये सब connected है एक दूसरे से। Okay, तो अभी हमें देखना है कुछ ऐसे organelles which are working independently, which are not always connected. Okay, तो वो आएंगे माइक्रोबॉडीज। ओके, माइक्रोबॉडीज का मतलब क्या है? सिंपल है, लाइक नाम से ही पता चल जा रहा है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बॉडीज ऑर्गेनल्स। तो सेल के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं यूकैरियोटिक में, लाइसोसोम्स आर देयर, राइट? सो उसके अलावा देयर आर मेनी अदर माइन्यूट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। अगेन स्ट्रक्चर वाइज यू वोंट फाइंड एनीथिंग इन दिस। एक छोटे छोटे गोल गोल सैक्स दिखेंगे जिसका अपना खुद का एक मेम्ब्रेन होगा बस, बिकॉज वी कैन नॉट मॉर्फोलॉजिकली सी एंजाइम्स कि इसमें एंजाइम है, इसमें स्टोर्ड मटेरियल है, कुछ है, वो नहीं दिखेगा, वो फंक्शन वाइज ही पता चलेगा। सो हियर ऑल्सो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स बोथ, एंड दे कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, कोई बुला रहे क्या? नहीं वो सामान निकाल रहे थे। Okay, okay. So when you talk about these structures, ये इन सारे इस तरह के जो structures हैं उनको सब मिलाकर हम बोलते हैं microbodies. So there are 3 types of microbodies you have to learn. Okay, first one is spherosomes. Spherosomes क्या होते हैं? वो ऐसे cells में ज्यादा मिलेंगे which require synthesis and storage of fats. स्ट्रक्चर वाइज नथिंग, छोटे छोटे बस ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स, बट फंक्शन क्या हुआ इनका? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स। तो फैट्स को प्रोड्यूस करेंगे, स्टोर करेंगे, किसमें? स्फेरोसोम्स में। तो जैसे कुछ सीड्स होते हैं जिनमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है, लाइक ग्राउंड नट, यू नो दैट, है ना? ग्राउंड नट ऑयल हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। तो उनके सीड्स के जो एंडोस्पर्म है, नाउ यू नो व्हाट इज एन एंडोस्पर्म, तो उन एंडोस्पर्म के सेल्स में स्फेरोसोम ज्यादा रहेगा, बिकॉज ग्राउंडनट ऑयल बनाना है, सनफ्लावर का ऑयल बनाना है, कोकोनट ऑयल बनाना है। तो ऐसे सीड्स के एंडोस्पर्म के सेल्स में यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्फेरोसोम्स, एंड इनका जो मेम्ब्रेन होता है ना, कवरिंग, इट इज अदरवाइज सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का डबल लेयर होता है, यहाँ पे सिंगल लेयर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। बाकी कुछ नहीं है स्फेरोसोम्स के बारे में। Just you have to remember their function is synthesis and storage of fats. तो फैट्स के सिंथेसिस के लिए जितने रिक्वायरमेंट्स होंगे, जो एंजाइम्स लगेगा, जो रॉ मटेरियल्स लगेगा, वो सब इन स्फेरोसोम्स में बना हुआ है, एंड दे आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। ये देख, ग्राउंडनट के सेल्स का स्फेरोसोम्स ऐसे ही दिख रहा है बस। अब क्या बनाया डायग्राम इसका? नथिंग टू बी शोन एज अ डायग्राम, गोल गोल स्ट्रक्चर्स है बस। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स, बट फंक्शन याद रखना, ठीक है? पहला माइक्रोबॉडी समझा, स्फेरोसोम्स, ठीक है? सिमिलरली गोइंग टू द सेकंड वन, यू हैव पेरोक्सीसोम्स। ओके, पेरोक्सीसोम्स क्या करते हैं? दे कंटेन एंजाइम्स अगेन, बट इनका स्पेसिफिक फंक्शन है। वो क्या करेंगे कि किसी भी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन एटम्स को निकालकर दे विल प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन निकाला, बाहर से ऑक्सीजन यूज किया,
and they produce hydrogen peroxide, which is nothing but H2O2, and that's a toxic compound. तो specifically hydrogen peroxide बनाते हैं, that's why their names are peroxisomes. Okay, and इसके अलावा इनमें दूसरे एंजाइम्स होते हैं जो इस टॉक्सिक पेरोक्सीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं. तो डिटॉक्सिफिकेशन इन द अल्कोहल इन द लिवर सेल्स, जो बहुत ज्यादा बेवड़े लोग होते हैं अल्कोहल पीते, ओके, तो उनका अल्कोहल जो है वो लिवर में डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है ताकि वो डैमेज ना कर सके. दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय पेरोक्सिसोम्स. तो ये देखना, ये दूसरा डायग्राम. ओके, लाइक क्या दिख रहा है सेल के अंदर, ये जो गोल वाला दिख रहा है बीच में, दैट्स अ पेरोक्सिसोम. स्ट्रक्चर वाइज नथिंग डिफरेंट बट फंक्शन इज डिफरेंट. स्फेरोसोम्स में फैट्स का सिंथेसिस, पेरोक्सिसोम में प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. Clear about this? Okay, understood the second function also properly? ठीक है. The third type of microbody is something called glyoxysomes. अब glyoxysomes क्या करते हैं? They have enzymes which convert fatty acids to sugar. You know fatty acids. Break down products of fats and lipids. तो फैटी एसिड्स को अगर स्टोर किया हुआ है सेल में एंड उसको डाइजेशन करना है लेटर, तो उसको पहले ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करना है. शुगर का फर्दर रेस्पिरेशन करके एनर्जी सोर्स बने. दैट इज डन इन द ग्लायोक्सिसोम्स. तो जर्मिनेटिंग सीड्स के सेल्स में ये नजर आता है. तो देयर आर मेनी सीड्स व्हिच हैव फैट्स एज द सबस्ट्रेट. तो जब उसको रेस्पिरेशन करना है, सीड्स को जर्मिनेशन करना है, तो फैट्स का कन्वर्ट करके फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करके शुगर्स का फर्दर रेस्पिरेशन से एनर्जी. तो एम्ब्रियो को एनर्जी मिलेगा, इट विल बी एबल टू जर्मिनेट एंड देन इट विल बी एबल टू कैरी आउट इट्स ओन फोटोसिंथेसिस. तो वो होता है ग्लायोक्सिसोम्स के वजह से. स्ट्रक्चर वाइज नथिंग मच. ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर है, हैविंग इट्स ओन मेम्ब्रेन. There is a matrix inside and there is a core complex having the required enzymes. तो बस एंजाइम कंपोजिशन अलग अलग है सब. तो ये तीन टाइप के माइक्रोबॉडीज. ओके, तो कौन सा देखा? फर्स्ट वन स्फेरोसोम्स. ओके, सेकंड वन पेरोक्सिसोम्स. पेरिक्सो नहीं, डोंट इन्वेंट न्यू माइक्रोबॉडीज, राइट? एंड थर्ड वन ग्लाइऑक्सी. कॉ है ही नहीं, ग्लाइओ. ओके, यस. तो तीनों का फंक्शन सब याद रखें. ठीक है. तो माइक्रोबॉडीज इसलिए सबको मिलाकर बोलते हैं माइक्रोबॉडीज. ठीक है. सो अच्छी तरह समझा ये सब माइक्रोबॉडीज भी. ठीक है. ओके. सो let's go on to the next very important cell organelle, and that is mitochondria. Right? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले भी सुना होगा कि these are the organelles. Now they are independent organelles. Okay, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? They are important cell organelles which are involved in aerobic respiration. That's the main function. एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं, बिकॉज एनारोबिक पूरा साइटोप्लाज्म में होता है. बट एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यू रिक्वायर माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज देयर मेन फंक्शन. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दे आर आल्सो नॉट फाउंड इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. ब्लड में आरबीसीज का क्या फंक्शन है? क्या? ब्लड में आरबीसीज का क्या फंक्शन है? ब्लड कलेक्ट करना. ब्लड कलेक्ट करना. हाँ, ब्लड मतलब में ही उसमें जो आरबीसीज ब्लड होता है ना. हाँ,
नहीं, ओ हाँ आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हाँ हेमोग्लोबिन। हाँ तो वो क्या करता है हेमोग्लोबिन? पिगमेंट देता है ब्लड को। नहीं, दैट इटसेल्फ इज अ पिगमेंट। मतलब ब्लड हेमोग्लोबिन को का कलर। फंक्शन है, नहीं सिर्फ कलर का मतलब नहीं, अगर ब्लड ब्लू भी होता तो क्या हो जाता, राइट? सो गिविंग कलर इज नॉट अ फंक्शन एज सच। सो हेमोग्लोबिन का फंक्शन है वॉट एवर ऑक्सीजन वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग, that is transported to every part of the body. So RBCs are oxygen carriers ओके हाँ हाँ and बाकी सारे वो बॉडी सब पार्ट्स में पूरे से body। कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाना, वो भी आरबीसीज का। तो आरबीसीज का मेन फंक्शन है कैरिंग ऑक्सीजन। ओके, ब्लड सेल वेसल्स में होता है ना वो। हाँ ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, उसके अंदर ब्लड जा रहा है। हाँ ब्लड में आरबीसीज है, आरबीसीज में हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। नाउ इज इट क्लियर? ओके, तो आरबीसीज का फंक्शन है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एंड आरबीसीज आर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। एंड अगर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो ऑक्सीजन जिसको मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है वो बिना चाहते हुए भी उसको यूज कर लेते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है फॉर विच ऑक्सीजन इज नीडेड। दैट्स द रीजन नेचर हैज डिसाइडेड कि आरबीसीज लिविंग सेल ऑर्गेनल्स रहने दो, बट उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं डालते। अदरवाइज जो ऑक्सीजन उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है वो खुद यूज कर लेगा। इसलिए किसी चोर को ही बोल रहा है ये सोना जाके उसको पहुंचाते, ऑब्वियसली नहीं पहुंचेगा ना, वो तो खुद यूज कर लेगा। तो सेम वे, ओके, आरबीसीज डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। एंड शेप अगर बोला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का दे कैन बी ओवल, sometimes they are spherical, sometimes they are spiral strip like, okay, sausage shaped ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। It will vary from one cell to another, but in general mitochondria को हम बोलते हैं power house of the cell, you know that, also called energy mills or ATP mills, because this is where the power is created। पूरे सेल को जो भी काम करना होते हैं उसके लिए important requirement is energy in the form of ATP, वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। The process is aerobic respiration, ठीक है। So let's see the structure of the mitochondria. Okay, क्या क्या रहता है इसके स्ट्रक्चर में? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है which is having a double membrane around it, two membranes around it. You can see the diagram, outer membrane, inner membrane, दो membrane होते हैं, okay। And on the outer membrane there are certain particles present facing outside, जिनको बोलते हैं पोरिन्स, ऑल्सो कॉल्ड पार्सन्स पार्टिकल्स। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे कॉल्ड पोरिन्स और पार्सन्स पार्टिकल्स। दे आर परमिएबल टू मेनी मेटाबोलाइट्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय दीज पोरिन्स और पार्सन्स पार्टिकल्स, व्हिच आर प्रोटीन्स ऑन द आउटर मेम्ब्रेन। Okay, similarly inner membrane is also selectively permeable. So structurally they are similar to that of the plasma membrane. You remember the fluid mosaic model, थोड़ा बहुत उसके जैसा structure, okay। Outer membrane, inner membrane. Now between both the membranes there is some space, उसको बोलते हैं outer space, okay, between both the membranes, intermembrane space भी बोलते हैं उसको, ठीक है। And on the inner membrane, now if you observe carefully, inner membrane कैसा designed है कि suppose this is the mitochondria, okay, ये outer membrane है। Inner membrane is divided into many folds like this, internally वो ऐसे folds like this। तो ये जो inner folds है, invaginations of the inner membrane, उसको बोलते हैं cristae, finger shaped projections inside, दिख रहा है?
उसको बोलते हैं क्रिस्टे. Okay, on the inner membrane, and on the inner membrane there are many particles present. ऐसे छोटे छोटे particles हैं inner membrane पे. उन particles को बोलते हैं oxysomes, और sometimes they are otherwise cytochromes और electron carriers. ये सब respiration में जरूरत है. ये होते हैं inner membrane पे surface पे. Okay, and inside the inner membrane ये जो fluid है यहाँ पर this part, उसको बोलेंगे matrix, which is a fluid inside the inner membrane. ठीक है, that fluid contains all the required enzymes of respiration. ठीक है, so matrix में क्या क्या रहेगा? DNA. माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA होता है. Though it is one of the organelle of the cell, but still it is having its own DNA. And that's why it is working partially independently from the nucleus. इसलिए उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल. ये न्यूक्लियस पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं, ये खुद का अपना दिमाग चलाता है. It is having its own DNA. It has got its own RNA, 70 as ribosomes है, lipids है, enzymes of respiration, everything is same. ये सब मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. ठीक है, understood the overall structure of mitochondria, all the parts, outer membrane, inner membrane, outer space या intermembrane space, cristae, particles on the cristae called oxysomes, and the matrix. Now अभी क्रिस्टे के ऊपर या इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो पार्टिकल्स है जिनको हमने ऑक्सीजोम्स बोला था, लेट अस सी दैट इन डिटेल. तो ये जो ऑक्सीजोम्स हैं उसके बहुत सारे अलग अलग नाम है. एज यू कैन सी, ऑक्सीजोम्स आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आल्सो कॉल्ड एटीपी पार्टिकल्स, आल्सो कॉल्ड F1 particles, also called mitochondrial particles, also called Fernandez, Muir and Servionets. तो सिर्फ 6 नाम है एक ही चीज के. टू रिमेम्बर दैट. ठीक है, ऑल दिस यू हैव टू रिमेम्बर. नाउ इसके स्ट्रक्चर देखना. ओके, एक सिंगल F1 पार्टिकल, सी ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द क्रिस्टा. ऑन द क्रिस्टा एज यू कैन सी ये पार्टिकल्स अरेंज F1 particles. Okay, so it has got its own protein and lipid layer, F1 particles, respiratory enzymes, everything is present. Each F1 particle is consist of a head and a base or a foot. So there is a base, there is a pedicel or a stalk, and a head. F1 particle एक एक ऐसा बना हुआ. Okay, so the head is called F1, also called lollipop. Okay, you know what is lollipop? बचपन में बहुत खाई रहेगी. तो ये हेड भी उसी तरह का दिखता है, तो उसको F1 या लॉलीपॉप करके बोलते हैं. एंड दैट इज द वन फेसिंग द मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले फ्लूइड. ओके, देन द फुट इज कॉल्ड F0. इट इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन, एज यू कैन सी. इनर मेम्ब्रेन के अंदर गड़ा हुआ है, एम्बेडेड. ठीक है, and the head is the one which acts as ATP synthase. Respiration जब हम डिटेल में देखेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन में you remember glycolysis, Krebs cycle, ETS 10th में पढ़ा था, याद है? I had shown you some pathways. तो उसमें जो Krebs cycle होते हैं, okay, that is in the matrix. and जो electron transport system होते हैं, that is in the F1 particles. तो aerobic respiration का third step, where ATP synthesis takes place, that is requiring the enzyme called ATP synthase, जो F1 particle के head portion. Okay, and the foot portion acts as a proton channel, कि वो protons को transfer करेगा ATP और reduction वगैरह के लिए. It's again a part of respiration.
That's why the overall function of the oxysome, there are two of them. First है proton pumping, कि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर प्रोटॉन्स को इधर उधर पंप करेगा. And second function is ATP synthesis. Both of them during respiration. Clear about it? Mitochondria का structure में इतना ही है. So you have to understand the number and the shape and the structure of mitochondria with all the parts and the detailed structure of the F1 particles also. जिसके इतने सारे मैंने अच्छे अच्छे नाम बताए. Oxysome, elementary particle, ATP particles, F1 particle, mitochondrial particle, Fernandez, Muir and Saburis. ठीक है? Any doubt in mitochondria? ठीक है? So we have discussed about lysosomes. We have completed vacuoles. We have completed microbodies, जिसके तीन type, right? Spherosomes, peroxisomes, glyoxysomes, and then we have discussed about mitochondria. So I guess आज के लिए इतना ठीक है. Retain this much, digest this much. तो बाकी जो भी बचा है वो नेक्स्ट सेशन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा. The lesson will be over. तो अभी समझ में आ रहा है ना कि सेल के अंदर कितना कुछ है and क्या क्या चलते रहते हैं, right? And how specifically function wise they are distributed, right? And how advanced they are as compared to prokaryotic cells. Correct? Any doubt? So clear? Okay, great.